Shall we turn please to John's Gospel, chapter 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय and reading verse 16 and 16 to 18, and then 26. हम 16 से 18 पढ़ेंगे और फिर 26 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से 18 और फिर 26 वचन। Yes. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Shall we have a word of prayer? Heavenly Father, great and mighty God, we look unto Thee, Lord. We thank You that You are the source of all wisdom, knowledge, and, oh Father, we pray that as we look into the Scriptures, by the help of the Holy Spirit, You will speak to us, Lord. We humbly come before You, not trusting in our own insight and wisdom, but by the help of the Holy Spirit, Lord. We ask You to protect us from any disturbance, and Lord, pray for translation, and Thy word might go forth and not return to Thee void. We pray in the name of the Lord Jesus. Amen. आमीन। So, in this passage we read about the Holy Spirit, who is translated in my Bible as the Comforter. और यहाँ पे जो भाग हमने पढ़ा, यहाँ पे पवित्र आत्मा के विषय में हमने पढ़ा और इंग्लिश बाइबल में जो भाई के अनुवाद हैं उसमें वो है शांति देने वाला। But actually, it's more than just this word paraclete in the Greek is more than just comforter. और यूनानी भाषा में ये जो शब्द है पैराक्लीट, ये शांति देने के अलावा भी बढ़कर है। It means one who has taken the place of the Lord Jesus Christ after Christ left the earth and went back to heaven. इसका अर्थ है वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह का स्थान लिया जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से चला गया। Like one who is a substitute for the Lord Jesus Christ. दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह के एवज में वो व्यक्ति खड़ा है। And so a couple of things we need to understand about the Holy Spirit. Firstly, the Holy Spirit is a person. दो तीन बातें हमें पवित्र आत्मा के विषय में समझनी आवश्यक है। सबसे पहली बात है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। And secondly, the Holy Spirit is God. He is divine. दूसरी बात पवित्र आत्मा परमेश्वर है, ईश्वरीय है। And so in John 14 and verse 16, it says, the Lord Jesus says, I will pray the Father, and He shall give you another paraclete, that He may abide with you forever. और 16 वचन में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक सहायक देगा, जो कि होना चाहिए शांति दाता दूंगा, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। Now, the Lord's 3.5 year ministry on earth was just the beginning of
his ministry. और प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवकाई जो पृथ्वी पर की, वो उसके सेवकाई का आरंभ ही था। In Acts chapter 1 and verse 1, we प्रेरित काम 1 के 1 अध्याय में we read that that the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. और यहाँ पे लिखा है कि हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ से किया और करता और सिखाता रहा। So the ministry of the Holy Spirit, the Comforter, is to carry on the ministry which Christ started on earth. और पवित्र आत्मा जो शांतिदाता है, उसका कार्य यह है कि जो सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ की थी, उसको चालू रखना, उसको जारी रखना। And actually, we can say that the Holy Spirit is God's ascension gift to Christ. और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुआ, उसके बदले में पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से एक हमें भेंट के रूप में मिला है। And then the Lord Jesus Christ, he gives it to his church. और फिर प्रभु यीशु मसीह ये पवित्र आत्मा कलीसिया को देता है। And in looking at John 14 and verse 17, it says that, yeah, sorry. नहीं ब्रदर, कंटिन्यू। Even the Spirit of, it says in verse 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But you know him, for he dwells with you and shall be in you. और 17 वचन में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। The world only believes in things it can see or feel. और संसार उन चीज़ों पर विश्वास करता है जिनको वो देख सकता है और जिनको वो स्पर्श कर सकता है। But the Bible teaches us that the things which are seen will pass away, and the eternal things are the things which we don't see. Yeah. और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो मिट जाएंगी, लेकिन अनंत काल की बातें वो हैं जो वर्तमान में हमें दिखाई नहीं देती। And I mentioned that the Paraclete, the Holy Spirit, has been given to the church to take the place of Christ. जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा कलीसिया को इसलिए दिया गया है कि वो मसीह का स्थान ले ले। And you just cast your mind over the ministry of the Lord Jesus Christ and see how the Lord Jesus Christ, how he took care of his little flock. और हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई पर ध्यान दें, तो हमें दिखाई देता है किस प्रकार से उसने अपने छोटे झुंड की रखवाली की। He fed them even with material food. और प्रभु ने अपने झुंड को भौतिक भोजन भी खिलाया। You think of the feeding of the 5,000, और जब 5,000 लोगों को खिलाया, and he even provided their tax money, at least in the case of Peter. You remember when the tax, he told Peter to go and cast a line and pull out a fish, and
inside the fish's mouth would be the tax money for both of them. और यहाँ तक कि उसने उनका कर भी चुकाया जब उसने पतरस को कहा कि मछली पकड़ ले, पहली मछली पकड़ेगा उसके मुंह में सिक्का मिलेगा, और उसने उन दोनों का कर चुकाया। And even when they were tired and needed rest, it says in the word that he took them aside to a desert place to rest. और जब वो थक गए थे चेले, तो वचन बताता है कि प्रभु उनको एकांत में ले गया ताकि उनको विश्राम मिले। And when he went with his disciples through the cornfields on the Sabbath day and they plucked and ate the corn, the Pharisees were there to accuse his disciples for working on the Sabbath. और जब सबत के दिन वो खेतों में से जा रहे थे, तो चेलों ने भूख लगी थी, उन्होंने कुछ दाने खाने लग गए, और फरीसी लोग उन पर दोष लगा रहे थे, सबत के दिन तुम काम कर रहे हो। Lord Jesus himself did not do that. It was his disciples, but immediately the Lord Jesus came to their defense against the Pharisees. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बालें तोड़कर नहीं खाई, लेकिन जो चेलों ने तोड़ी थी, और जब उन पे दोष लगाया गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत आकर उनके पक्ष में वो बोलने लगा। So, just as the Lord Jesus was to his little flock of disciples in his ministry, so he is to us, the church today. जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने छोटे झुंड के प्रति उनके रखवाली कर रहा था, उसी रीति से आज भी वो कलीसिया की रखवाली करता है। And so the Lord Jesus Christ, he goes before us as a good shepherd and leads us and feeds us. And we can have the assurance that the Holy Spirit has been sent to be by our side to defend us. और उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह अच्छे चरवाहे के रूप में हमारे भी आगे आगे चलता है, और हमें संभालता है, और हमारे पास ये निश्चयता होती है कि पवित्र आत्मा में दिया गया है ताकि वो हमारी रक्षा करे। So truly, we can say Paraclete means a substitute for the Lord Jesus Christ. इसीलिए जो पैराक्लीट शब्द है पवित्र आत्मा के लिए, वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के बदले में हमें दिया गया वह प्रबंध है। And the ministry of the Holy Spirit is, we can say, chiefly to honor the Lord Jesus Christ. और पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह का आदर करे। Now, looking at John 14 and verse 18, और यूहन्ना 14 का 18 देखेंगे। the Lord says, in the margin, in the original Greek, what it says is, I will not leave you comfortless. I will not leave you as orphans. और इसमें लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। An orphan is, of course, is someone who has no living parents. और अनाथ वो व्यक्ति होता है जिसके माता पिता जीवित नहीं होते, And we can say he would feel very alone in the world. और वो इस संसार में अकेला महसूस करता है। But the Holy Spirit assures us that he is always with us, and it says in verse 20, where does it say? Well, it says that not just the Holy Spirit, I think it's in chapter 16, it says not just the Holy Spirit is with us, but he's also in us. और न केवल पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन वो हमारे अंदर है, ऐसा भी लिखा है।
So let's turn then to, first of all, let's look at verse 26 in chapter 14. और 14 का 26 देखेंगे। And there, the Lord says, when the Paraclete, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, when he comes, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance. और यहाँ लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Now, sometimes you may wonder how the disciples or how the ones who wrote the Gospels, how they could remember all the Lord Jesus spoke to them. और आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो सुसमाचार की पत्रियां हैं जिन्होंने लिखी, उनको वो सब बातें कैसे याद रही जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाई थी। In the last chapter of John 21 and verse 25, it says, John says, there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written, every one, I suppose, that even the world itself could not contain the books that should be written. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय में लिखा है कि जो कुछ प्रभु ने सिखाया, अगर वो सब लिखा जाता तो इतनी किताबें होती कि वो पूरे पृथ्वी पर भी नहीं समा जा सकती। So there, in that verse 26, the Lord promises that he will bring back to their memory by the Holy Spirit the things which need to be written down as the Word of God. और यहाँ पे लिखा है 26 वचन में कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखना आवश्यक था, उन बातों को पवित्र आत्मा ने चेलों को याद दिलाया, जिसके द्वारा उन्होंने ये सब पुस्तकें लिखी। And these are the things which are written in the Gospels, uh, the acts and words of the Lord Jesus, which we need in this life for our blessing and comfort. और जो बातें हमारे वर्तमान जीवन के लिए आवश्यक है, जिसके द्वारा हमें आशीष मिलती है, वो सब बातें पवित्र आत्मा ने प्रभु के लोगों को याद दिलाई और उन्होंने वो लिख ली। And if we turn to chapter 16 and verse 7, और the Lord यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 7, the Lord says to his disciples, it is expedient that for you that I go away, for if I don't go away, the Comforter will not come. और प्रभु कहता है, आपके लिए, तुम्हारे लिए ये आवश्यक है कि मैं चला जाऊं, अगर जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। So actually, Lord Jesus is saying here, it's good for you that I go. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है, तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं चला जाऊं, Because the Holy Spirit is omnipresent. That means he can be in more than one place at the same time. क्योंकि पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, एक ही बार में वो कई जगहों पे उपस्थित रह सकता है। But at that point on earth, the Lord Jesus Christ was only one person. He was not omnipresent when he was on earth. और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो वो सर्वव्यापी नहीं थे, वो जिस स्थान में थे वहीं पे वो उपस्थित थे। So that's why the Lord said, it's to your advantage that I go. इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि मैं तुमसे चला जाऊं। And we should understand that the chief reason that the Holy Spirit
is sent to the church is to give us anointing and boldness to preach the gospel. और मुख्य वजह पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है ताकि हमें अभिषेक मिले, हिम्मत मिले, हियाव मिले, ताकि हम सुसमाचार का प्रचार कर सके। And the Lord Jesus on earth, he taught and preached, and that ministry has been passed on to believers. और प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, उन्होंने सिखाया, प्रचार किया, और यही सेवकाई अब विश्वासियों को सौंपी गई है। Now, without a doubt, the disciples had received the Holy Spirit. We can say they were born again before the day of Pentecost. और पिंतकुस्त के दिन से पहले ही जब चेलों का नया जन्म हुआ, उसी समय उनको पवित्र आत्मा का दान मिल गया था। They believed and submitted to Christ. और उन्होंने विश्वास किया और अपने आप को प्रभु यीशु के अधीन कर दिया। Apostle Peter confessed in Matthew 16, "Thou art the Christ, the Son of the living God." और पतरस ने मत्ती 16 में इस बात की गवाही दी कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And even Martha, uh, uh, in chapter 12 of John, said that the Lord Jesus Christ was the Messiah, the Son of God. In chapter और मार्था ने भी 11 अध्याय में यूहन्ना के कहा प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि तू परमेश्वर का पुत्र है। That's verse 27 of John 11. उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है, वो तू ही है। So clearly, that little faithful group of disciples, they believed in the Lord Jesus, and we can certainly say they were saved and born again. और ये छोटा झुंड जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनका उद्धार हुआ, उन्होंने नया जन्म पाया। And what we see at Pentecost, this coming of the Holy Spirit in by tongues, like fire coming like tongues on the disciples, is anointing for ministry. लेकिन हम देखते हैं पंतकुस्त के दिन पे जो पवित्र आत्मा आग के लपटों के द्वारा उनके ऊपर उतरा, वो उनका अभिषेक हुआ सेवकाई के लिए। It's like a filling of the Spirit to empower us for the preaching of the gospel. और दूसरे शब्दों में ये हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है ताकि हम सुसमाचार का प्रचार करें। There are three things the Lord is working in our lives. और प्रभु हमारे जीवन में 3 प्रकार के कार्य करता है। Firstly, new birth, पहला नया जन्म, and secondly, sanctification or growth in holiness, और दूसरा कार्य पवित्रीकरण या पवित्रता के दर्जे में बढ़ जाना, and thirdly, service and anointing for service. और सेवकाई के लिए अभिषेक। You remember how after the Lord Jesus, we can say, waited for 30 years before he received that anointing for ministry at his baptism. और हम याद करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल के थे और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो सेवकाई के लिए उनका अभिषेक हुआ। And the ascension of the Lord Jesus Christ to heaven was 40 days after the resurrection. और
दोबारा जीवित होने के बाद 40 दिन बीतने पर प्रभु यीशु मसीह जो है उनका स्वर्ग आरोहण हुआ। And when he ascended, he said, I will send you the Holy Spirit. और जब वो उठाए गए तो उन्होंने कहा मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। And so for 10 days, we read in Acts chapter 1, they were much in prayer, waiting for the promise of the Lord. और हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम पहले अध्याय में कि चेलों ने प्रार्थना में समय बिताया ताकि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दी थी पवित्र आत्मा के विषय में वो पूरी हो जाए। And after 10 days, in chapter 2, we read about this, the how the Holy Spirit came on the day of Pentecost. और फिर हम प्रेरितों काम 2 अध्याय में पढ़ते हैं किस प्रकार से पंतकुस के दिन में पवित्र आत्मा उन चेलों पर उतरा। So this is what, as I said, this is God's 3-point plan, really. Firstly, new birth. Secondly, holiness, sanctification. Then, when we are ready from that, then He brings us to the next step, anointing for service. और जैसे 3 मुख्य काम है पवित्र आत्मा के, सबसे पहले हमें नया जन्म देता है, फिर हमें पवित्रता के दर्जे में बढ़ाता है, सिद्धता की ओर बढ़ाता है, और जब हम ये 2 कार्य अपने जीवन में पाते हैं तो वो हमें अभिषेक करता है ताकि हम उसकी सेवा करें। So Pentecost was anointing of the church for the service of God, service of the Lord. और पंतकुस दिन का उद्देश्य था कि कलीसिया का अभिषेक हो ताकि वो प्रभु की सेवा करे। And we read so many times in the Old Testament and even in the New Testament how the Holy Spirit came upon people to give them anointing, boldness for certain tasks. और पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं, नए नियम में भी पढ़ते हैं किस प्रकार से पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था ताकि उनका अभिषेक करे और ताकि वो लोग हिम्मत पाकर वो काम करें जिनके लिए वो ठहराए गए थे। If you turn to Book of Judges, न्यायों के पुस्तक and chapter 15 and verse 14. न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 14 वचन। वह लही तक आ गया कि फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में से जले हुए सने के समान हो गई और उसके हाथों में बंधन मानो गलकर टूट पड़े। Yeah. So even in the Old Testament, that Holy Spirit came upon, in this case, Samson, to perform a superhuman feat, superhuman act. और हम देखते कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था ताकि वो एक बहुत सामर्थ्य काम करे, अलौकिक काम करे, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं शिमशोन पे वो उतरा। Then we can turn to 1 Chronicles chapter 12 पहला इतिहास उसका 12 अध्याय and verse 18. उसका 18 वचन। तब आत्मा आमोस में समाया जो 300 वीरों में मुख्य था और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं, हे यिशै के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल में मुखिया ठहरा दिया। So the Holy Spirit came up to David
और यहाँ पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा अमैसे पे आ गया ताकि वो दाऊद के प्रति अपनी वफादारी को प्रकट करे। Uh, and there are so many other examples in the Old Testament. We don't have time to go through all of them. And so the point is that what you see at Pentecost is anointing. और भी बहुत सारे उदाहरण हैं पुराने नियम में, लेकिन पिंतकुस्त के दिन में हम मुख्य बात देखते हैं कि सेवकाई के लिए उनका अभिषेक किया गया। So if we go back to John chapter 16, वापस यूहन्ना 16 में आएंगे and we read from, we can read from we can better read from verse 7 to verse 11. So 7 से 11 तक हम पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। now we read in those verses that the Holy Spirit will convict the world of sin, righteousness, and judgment. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जो है संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा या कायल करेगा। The Holy Spirit has a very powerful weapon, which we read about in Hebrews 4, verse 12. और पवित्र आत्मा के पास एक बहुत ही सामर्थी हथियार है जो कि हम इब्रानियों 4:12 में पढ़ते हैं। Yeah, can you read verse Yes. 12? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ-गांठ और गुदे-गुदों को अलग करके आर पार छेद है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। So this powerful weapon that the Holy Spirit uses is the sword of the Spirit. और ये जो हथियार हैं, जो सामर्थ्य हथियार है पवित्र आत्मा का, जो परमेश्वर का वचन है, जो एक तलवार के समान है। And this sword of the Spirit, it cuts to the heart, it pricks the heart, और ये पवित्र आत्मा की तलवार जो है वो हृदय को छेद देती है, उसको आर पार करती है। and as someone once said, blessed is the one who welcomes its surgery. और किसी ने ऐसी रीति से कहा कि वो व्यक्ति धन्य है जो इस तलवार के काटने को स्वीकार करता है। And we need to obey the word of God, which the Holy Spirit speaks to us. Which, yeah, just say that. और हमें उस परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना है, जो पवित्र आत्मा हमारे पास लाता है, जिसके द्वारा वो हमसे बात करता है। Many often I notice young people who are children of believers. They have been brought up with the Word of God and heard it so often. When they hear it in later years, it just seems to go in one ear and out the other ear. और मैंने बहुत बार देखा है विश्वासी परिवारों में बच्चे बचपन से ही परमेश्वर के वचन को पढ़ते आ रहे हैं,
लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो परमेश्वर का वचन उनके एक कान में से आता है और दूसरे कान में से निकल जाता है। And we need to allow the Holy Spirit that it doesn't do that, but it strikes and speaks to our heart whatever God wants to say to us. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमारे कान में आता है, वो हमारे हृदय में उतरे और परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। These days, many believers have been deceived into thinking that uh, the words in the first three Gospels uh, are not just for, are mainly for, actually for Jews and not for believers. और बहुत सारे विश्वासियों वर्तमान में भ्रमित हो गए हैं, जो सोचते हैं कि पहले 3 जो सुसमाचार की पत्रियाँ हैं, वो विश्वासियों के लिए नहीं है, वो केवल यहूदी लोगों के लिए है। We live in the end days, the lukewarm age. और हम अंत के दिनों में रहते हैं जहाँ गुनगुनापन है। And this dispensationalist theory, which was basically made up by the brethren, uh, says there are so many things in the New Testament which apply only to the Jews. और ये जो ब्रेदरन लोगों ने कुछ ऐसे शिक्षाएँ लाए हैं, जिनके तहत ये कहते हैं कि कुछ बातें नए नियम में हैं, वो केवल यहूदी लोगों के लिए हैं, विश्वासियों के लिए नहीं है। And this dispensationalist idea was really spread around the world through the Schofield Bible. और ये जो इस प्रकार की शिक्षा है, जो ब्रेदरन लोगों के द्वारा संसार में फैलाई गई, वो स्कोफील्ड बाइबल के माध्यम से ये फैलाई गई है। And I remember Brother Buxing saying, do not read the Schofield Bible. और मुझे स्मरण है कि भाई बक्सिंग कहते थे कि ये स्कोफील्ड बाइबल को आप मत पढ़िए, Because this dispensationalist theory is laid out in that. क्योंकि ये जो इस प्रकार की शिक्षा है डिस्पेंसेशन की, वो इसी बाइबल के माध्यम से फैलाई जा रही है। In the notes at the bottom of every page in it. और उसके हर एक पन्ने के नीचे नोट्स बने हैं उसके माध्यम से। You should never accept a Bible where the footnotes tell you how to interpret the, the page above it. और इस प्रकार की बाइबल का प्रयोग ना करें जिसमें नीचे लिखा जाता है कि ऊपर लिखे गए जो वचन है उसका क्या अर्थ है। That just narrows you to a particular way of interpretation. और फिर आपकी जो सोच है वो संकुचित हो जाती है और आप एक ही प्रकार की सोच रखने लगते हैं। So, this teaching, uh, anything, see, I'll say what I mean is that, the gospel, the Lord Jesus Christ in the gospels, he says sometimes some very hard things for believers. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुसमाचार की पत्रियों में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए कई बार बहुत कठोर शिक्षा दी है। And it's not faithful to the word of God if we say the hard things he says, especially in the first three gospels, apply to Jews and not to non-Jews. और इसीलिए यदि हम कहेंगे जो पहले 3 की सुसमाचार की पत्रियाँ हैं, वो केवल यहूदियों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, तो ये गलत बात होगी। We have to accept the hard things as well as the
the kind and loving things. और जिस प्रकार से हमें अच्छी और मनभावनी बातें पसंद आती हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की कठिन शिक्षा को भी हमें ग्रहण करना चाहिए। You know, there is no, from start to finish of the Bible, there is no place where you can say it applies only to the Jews. It's for all believers. और बाइबल के आरंभ से अंत तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम कह सकते हैं ये केवल यहूदियों के लिए है। पूरी पवित्र शास्त्र बाइबल हर एक विश्वासी के लिए है। You know, even those things in the law of Moses, like the tabernacle and um, uh, the cleansing, I mean, they all have uh, a spiritual meaning. They're all types of New Testament realities. और जैसे मूसा की व्यवस्था है, तंबू है और कई प्रकार की सेवकाइयाँ हैं, वो नए नियम की जो सच्चाइयाँ हैं, उनका एक प्रतिरूप है वो। And even these people, they say that the book of Hebrews is for the Jews. कई लोग कहते हैं इब्रानियों की पत्री जो है यहूदी लोगों के लिए है। Just because it says some very hard things which they don't like to accept that believers, that it applies to believers. और कुछ लोग उसमें जो कुछ कठिन शिक्षा है, उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि ये विश्वासियों पर भी लागू होती है, इसलिए वो उसको इनकार करते हैं। But the book of Hebrews, without a doubt, is for all believers. और बिना किसी शक के इब्रानियों की जो पुस्तक है, वो हर एक विश्वासी के लिए है। One man of God who lived about 150 years ago, Dr. A.T. Pearson, और एक परमेश्वर के दास थे जो लगभग 150 साल पहले जीवित थे, जिनका नाम डॉक्टर A.T. पियर्सन था। so one believer said to him, do you accept this dispensationalist teaching? और उसने वो डॉक्टर पियर्सन से पूछा कि ये इस प्रकार की शिक्षा आपको ग्रहण है क्या? He replied, Brother, I do not believe in dividing the word of God. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर के वचन को अलग लोगों के लिए अलग तरीके से बाँटना, इस पर मैं विश्वास नहीं करता। Saying that some things are for the Jews, some things are for non-Jews. और ये कहना कि कुछ बातें यहूदियों के लिए हैं, कुछ बातें गैर यहूदियों के लिए हैं, मैं इसको नहीं स्वीकारता। The hard things are for Jews and the nice things are for believers. और जो कठिन बातें हैं वो यहूदी लोगों के लिए है और जो आसान बातें हैं वो विश्वासियों के लिए। इस प्रकार की शिक्षा वो नहीं ग्रहण करते थे। And the same thought they have with regard to the tribulation, believing that all believers will be raptured uh, before the 7-year tribulation period starts. और ये भी मानते हैं कि महाक्लेश का जो 7 साल का समय है, उसके आरंभ होने से पहले ही सारे विश्वासी उठाए जाएँगे। इस बात को वो नहीं ग्रहण करते। But the Bible teaches that escape is possible from that terrible 7-year tribulation period, but only for those who are living worthy lives. और बाइबल बताती है कि उस महाक्लेश के समय से हम बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जयवंत विश्वासी बनना है, जयवंत जीवन भी जीना है। You see, this is very popular idea today that all believers will be removed before before the suffering comes. और आजकल ये जो शिक्षा है बहुत प्रचलित है कि महाक्लेश आने से पहले सारे विश्वासी उठाए लिए जाएँगे।
But John 21, John 21 and reading verse 35 and 36 tells us that escape is possible uh, for those who are watchful and worthy. So we'll read those verses, Luke 21, verse 35 and 36. और लूका 21 अध्याय उसके 35 और 36 वचन में हम देखते हैं क्योंकि वह सारी पृथ्वी पर रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। In John 21, the Lord Jesus Christ describes in detail the events that will happen during the tribulation period and the suffering. And then finally, he concludes with verse 35 and 36, telling us, watch that you might be worthy to escape all these things. और लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि अंत के दिनों में किस प्रकार की घटनाएं होंगी, कैसे क्लेश होंगे, महाक्लेश होंगे। और 35 और 36 में वो कहता है कि तुम इन सब घटनाओं से बच सकते हो यदि तुम उसके योग्य बनो, तैयार पाए जाओ। Notice verse 35, it says that this terrible end time tribulation will come like a snare on the world. और इसमें लिखा है कि 35 में कि ये जो है फंदे के समान पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों पर आएगा। You know what a snare, as we understand it in the English world, a snare is what a gamekeeper might put on the forest floor to catch a rabbit, and the rabbit, totally unaware of the trap, walks through it and is caught in the trap. और फंदा वो चीज़ है जो एक व्यक्ति जंगल में बिछाता है ताकि मान लो एक खरगोश है, वो उस फंदे में फंस जाए और उसका शिकार बन जाए। So uh, this is the meaning of what we read in Luke chapter 17. और लूका 17 में हम जो बात पढ़ते हैं उसका यही अर्थ है। Where in verses 34 and 35, it talks about um, uh, two men in one, or two people in one bed, one taken, the other left. Two women grinding together, one taken, one left. और 34-35 में हम देखते हैं कि दो व्यक्ति एक खाट पर सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। And this is clearly talking about the surprise rapture. It just nobody expecting it, and suddenly it comes. और यहाँ पे दोनों घटना जो है वो अचानक उठाए जाने के विषय में है। दोनों ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वो घटना अचानक घटी, एक ले लिया गया, एक छोड़ दिया गया। And these, you have to note very carefully that it's talking about living believers. और ध्यान दीजिए, ये दोनों बातें जो है वो जीवित विश्वासियों के विषय में लिखी गई है। It's the rapture of the dead and living comes later. और जो मरे हुए विश्वासियों का उठाए जाना जो है वो बाद में होगा। But this uh, uh, first fruits rapture described in Luke 17 is for those who are ready and worthy and looking for the return of the Lord.
लेकिन ये पहले फल का उठाए जाना जो लूका 17 में पाते हैं, वो उन विश्वासियों के लिए है जो प्रभु की आगमन की बाट जो रहे हैं और तैयार हैं, वो ये पहले उठाए लिए जाएँगे। And you could even say that, uh, for example, in verse 34, those two uh, in one bed, that they were both believers, because normally speaking, you wouldn't have such a close fellowship. A believer would not have such close fellowship with an unbeliever. और जो 34 वचन में लिखा है, जो 2 लोग एक खाट पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, ये दोनों विश्वासी है। क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं होते, तो वो एक-दूसरे के इतने नज़दीक ना पाए जाते। And the Lord Jesus, in chapter 17, he gives two examples from the Old Testament of a sudden judgment which came upon the world, to an unsuspecting world. और पुराने नियम से भी प्रभु ने 2 उदाहरण दिए लूका 17 में। वो लोग जो है, वो निश्चिंत थे, वो तैयार नहीं थे और अचानक उनके ऊपर दंड आ गया। And the first one is in verse 26 and 27, which describes the flood of Noah. और 26-27 में पहली घटना है जब नूह के समय में अचानक जल प्रलय आ गया। And the second one in verse 28 and 29, which talks about the judgment on Sodom and Gomorrah. और 28 और 29 में हम देखते हैं किस प्रकार से सोदोम और अमोरा पे न्याय आ गया। And he uses those two examples from the Old Testament to show uh, that this rapture will be a surprise rapture. और पुराने नियम से ये 2 उदाहरण इसलिए देता है प्रभु, ये दिखाने के लिए कि जो प्रभु के पास उठाए जाना है, वो अचानक होगा। So we should be aware of the fact that, when we talk about rapture, uh, uh, rapture is depends on worthiness of life. और जब हम उठाए ले जाने के विषय में बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ये सब कुछ योग्यता से संबंधित है। And the first rapture in the Bible is of Enoch in chapter 5 of Genesis, where it says Enoch first walked with God and then God took him. और सबसे पहले उठाए जाने का वर्णन हम उत्पत्ति 5 में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हनोक सबसे पहले प्रभु के साथ-साथ चला, उसके बाद वो उठाया गया। And this is, these things are things which believers are, uh, are very unwilling to accept. And many believers are very unwilling to accept these things. और ये ऐसी बातें हैं जो अधिकतर विश्वासी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। And God does. You only have to read the book of Hebrews, which is an exhortation for believers. और आपको केवल इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये केवल विश्वासियों के लिए दी गई हुई शिक्षा है। And Hebrews is written as an exhortation to believers who have uh, grown weary and have ceased to move forward in their Christian life. और इब्रानियों की पुस्तक उन विश्वासियों के लिए खास तौर लिखी गई है जो थके हुए हैं या आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। Uh, we should we should take the word of God uh, very seriously. हमें परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
when we get up in the morning and have our quiet time and kneel before the Word of God, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और व्यक्तिगत संगति करते हैं और परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, we have to allow the Holy Spirit to uh, encourage us, but also sometimes to exhort us. और हमें पवित्र आत्मा को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो हमें सिखाए, शांति दे, और कई बार हमें घुड़के तो भी हमें उसको स्वीकारना है। And the last verse in Hebrews chapter 12, for example, it says, God is a consuming fire. Verse 29. और इब्रानियों के आखिरी भाग में लिखा है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। It says in verse 28, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. ताकि हम परमेश्वर के बड़े भय के साथ, भक्ति के साथ उसकी सेवा करें। So who is God saying that to, believers or unbelievers? और परमेश्वर ये बातें किसको कह रहा है, विश्वासियों को या अविश्वासियों को? It's very clear that he's saying it to believers. और ये बड़ा स्पष्ट है कि परमेश्वर विश्वासियों को लिख रहा है, कह रहा है। And in Hebrews chapter 2 and verse 2, it says that the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward. How shall we escape if we neglect so great salvation? और इब्रानियों 2 में लिखा है, जब ये वचन जो स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया, जब उसका उन्होंने इनकार किया, तो हम जो पुत्र के द्वारा जिसने हमसे बातें की है, तो हम निश्चिंत होकर इस उद्धार से कैसे बच सकते हैं? So the word spoken by angels was at Sinai, and disobedience resulted in judgment. और जो स्वर्गदूतों ने बातें की, वो सिनाई पर्वत पे बातें की, पर्वत से बातें की, और जब आज्ञा नहीं मानी उन्होंने, तो उनको दंड मिला। But we have much more as believers redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ, born again. How shall we escape if we neglect the word of God? लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, वो नया जन्म पाए लोग हैं, अगर हम निश्चिंत हो जाएंगे, तो हम परमेश्वर के न्याय से कैसे बच सकते हैं? So the as we read that the weapon, the sword of the Holy Spirit is the word of God, and how we need to listen and obey to His word uh, when He speaks to us. और इसलिए हमने देखा था कि पवित्र आत्मा का जो हथियार है, वो तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है। और जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से बात करता है, तो हमें उसको ध्यान से सुनना है और उसका पालन करना है। So finally, just again to repeat what God's work, what God desires to do in a believer. First, number one, new birth. Secondly, sanctification. Third, और जो हमने अभी सीखा उसको मैं दोहराऊंगा। जो पवित्र आत्मा के 3 मुख्य काम एक विश्वासी के अंदर है, वो नया जन्म है। दूसरा है पवित्रता के दर्जे में बढ़ाना, और तीसरा है कि वो सेवा के लिए उस विश्वासी का अभिषेक करता है। so may the Lord bless His word. प्रभु अपने इस वचन पर आशीष दे।